ہم نے گراج میں پہنچ کر وین بند کی، لباس تبدیل کیے اور پھر میں اور پیٹر واپس ہوٹل پہنچ گئے۔ برڈ اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، خیریت تو ہے چیف؟ کوئی گڑبڑ ہو گئی؟ میں نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں برڈ، جس کے لیے ہم گئے تھے وہی وہاں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ برڈ نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اولیو ہارورڈ وہاں موجود نہیں ہے؟ ہمارے آدمی نگرانی کر رہے ہیں اور مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ میں نے برڈ کو بتایا کہ مجھے اولیو ہارورڈ کی عدم موجودگی کا کیسے پتہ چلا۔ برڈ نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اوہ تو وہ اولیو ہارورڈ ہے۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ سرخ سپورٹس کار میں کوئی شخص اس عمارت سے نکلا ہے۔ میں نے اس کا تعاقب کرنے کا حکم دے دیا۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا کہ وہ اولیو ہارورڈ خود ہے تو میں اس کا تعاقب بہت زیادہ احتیاط سے کرنے کی ہدایت کر دیتا، لیکن خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اسے تعاقب کا شبہ نہیں ہو سکا اور اس وقت وہ امپیریل ہوٹل کے ریستوران میں کسی شخص سے بات چیت کر رہا ہے۔ پیٹر نے کہا، تم تو واقعی کمال کے آدمی ہو اور تمہارے آدمی بھی بڑی مستعدی سے کام کر رہے ہیں۔ ہم ابھی امپیریل ہوٹل جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ زندہ واپس نہ جانے پائے۔ میں نے تنبیہی انداز میں کہا، زیادہ پرجوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جلد بازی میں اٹھایا ہوا کوئی قدم ہمارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹر بولا، پھر کیا ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ اس طرح تو اسے کوئی بھی گزند نہیں پہنچ سکے گا اور وہ ہمیشہ یوں ہی دندناتا پھرے گا۔ میں نے کہا، اس مہم کا انچارج میں ہوں اور وہی ہوگا جو میں کہوں گا۔ اگر تمہیں میرے کہنے پر چلنا منظور نہیں ہے تو میری طرف سے تم آزاد ہو، جو چاہو کرو۔ برڈ نے کہا، چیف کا کہنا درست ہے مسٹر پیٹر، تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ چیف کے کہنے پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے رہو۔ پیٹر نے بے بسی سے پہلے برڈ اور پھر میری طرف دیکھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے مردہ سی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں سب کچھ تم پر چھوڑتا ہوں۔ میں نے کہا، ہم ابھی ہوٹل امپیریل چلیں گے، مگر وہاں ہماری حیثیت خاموش تماشائی کسی ہوگی۔ اگر میں نے مناسب سمجھا تو کوئی کارروائی کروں گا، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے؟ پیٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بولا، مسٹر برڈ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے یا نہیں؟ میں نے کہا، صرف ہم دونوں چلیں گے۔ ضرورت تو تمہاری بھی نہیں ہے، مگر تمہاری بے صبری دیکھتے ہوئے میں نے تمہیں ساتھ لے چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہم ہوٹل امپیریل کے ریستوران میں داخل ہو رہے تھے۔ پارکنگ میں سرخ سپورٹس کار دیکھ کر ہمیں باہر ہی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اولیو ہارورڈ ابھی تک یہیں موجود ہے۔ ہم پیٹر کی کار میں یہاں آئے تھے اور میں نے احتیاطاً ایک پستول بھی ساتھ لے لیا تھا جو میرے کوٹ کی اندرونی جیب میں موجود تھا۔ ریستوران کی اکثر میزیں آباد تھیں۔ میں نے دروازے ہی میں رک کر پورے ہال پر نظریں دوڑائیں اور اولیو ہارورڈ مجھے نظر آ گیا۔ وہ ہال کے ایک دور افتادہ گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر اس کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود تھا اور دونوں گفتگو کرنے میں منہمک تھے۔ اس نے اتفاق سے اس کے برابر والی میز غیر آباد تھی۔ میں نے پیٹر سے کہا، آؤ، لیکن اس کی طرف براہ راست دیکھنے کی حماقت نہ کرنا۔ ہم اپنی مطلوبہ میز تک اس انداز میں جائیں گے جیسے کوئی مناسب میز تلاش کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہوں۔ پیٹر بولا، لیکن مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون سی ٹیبل پر بیٹھا ہے اور میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ میں نے کہا، تم اسے اس کے نیلے سوٹ سے پہچان سکو گے، لیکن میں ایک بار پھر تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اس کی طرف براہ راست مت دیکھنا۔ ہم دونوں دھیمی آواز میں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ہمیں دیکھنے والا کوئی بھی شخص اس سے زیادہ کچھ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ دو دوست آپس میں باتیں کرتے ہوئے کسی مناسب سی میز کی تلاش میں ہیں۔ ہم مختلف خالی میزوں پر نظریں دوڑاتے ہوئے آخر اس میز تک پہنچ گئے جسے میں نے دور سے ہی تاڑ لیا تھا۔ میں نے بلند آواز میں پیٹر سے کہا، آؤ یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ میری آواز یکسر بدلی ہوئی تھی اور اتنی بلند تھی کہ اولیو ہارورڈ اور اس کے ساتھ موجود شخص نے میری آواز بآسانی سن لی۔ وہ بڑی محویت سے گفتگو کر رہے تھے اور میری آواز سے ان کی محویت میں خلل پڑا۔ دونوں نے چونک کر ایک لمحے کے لیے ہماری طرف دیکھا اور دوبارہ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں اور پیٹر بھی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہم نے اس قسم کی باتیں شروع کر دیں کہ جیسے ہمارے کسی دوست نے ہمیں ملاقات کا وقت دیا تھا اور وقت پر نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے ہمارا کوئی پروگرام خراب ہو گیا۔ اس قسم کی گفتگو کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر اولیو ہارورڈ کے کان میں ہماری کچھ باتیں پڑ جائیں تو وہ ہمیں عام آدمی ہی سمجھے۔ میں باتیں تو پیٹر سے کر رہا تھا مگر میرے کان برابر والی میز پر ہونے والی گفتگو کی طرف لگے ہوئے تھے۔ ریستوران کے شور میں ان کی باتیں واضح طور پر سننا تقریباً ناممکن تھا، تاہم کچھ اڑتے ہوئے الفاظ جو کان میں پڑے ان میں سے ایک بہت کارآمد بات علم میں آ گئی، اور وہ یہ کہ اولیو ہارورڈ کے ساتھ موجود شخص کا تعلق شام سے تھا اور وہ نیو یارک میں شام کے کاؤنسلیٹ آفس میں ملازم ہے۔ میرے لیے یہ بات خاصی حیران کن تھی۔ شام سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کا اولیو ہارورڈ کے ساتھ کیا کام؟ لیکن فوراً ہی مجھے یہ خیال بھی آیا کہ وہ میک اپ میں ہے اور اس کی میز پر موجود شخص اس کی اصلیت سے ناواقف ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ اس بات سے واقف ہوتا کہ اس کے مقابل بیٹھا ہوا شخص یہودی ایجنٹ ہے اور عربوں کا بدترین دشمن ہے تو صورتحال خاصی مختلف ہوتی۔ ذرا ہی دیر میں مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اولیو ہارورڈ کا فرضی نام پارکنسن اور شام سے متعلق شخص کا نام سعید ہے۔
शामी बशिंदे का नाम जाहिर है फर्जी नहीं हो सकता था, लेकिन ओलिव हार्वर्ड की शाम के किसी फॉरेन मिशन के मुलाजिम से मुलाकात मेरे लिए सख्त तशवीश का बायस थी। मालूम नहीं वो किस चक्कर में था। ये बात यकीनी थी कि उसके अज़ाइम जो भी रहे होंगे अरब दुनिया के लिए खतरनाक ही होते हैं। एक सहूनी एजेंट से कभी ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो किसी भी हाल में इसराइल के लिए काम करने से दस्तबरदार हो जाएगा। फिर वो दोनों अपनी मेज से उठ गए। इस मरहले पर मैंने पीटर के अंदाज में बेचैनी महसूस की। वो मुझसे किसी किस्म के इक़दाम की तवक्को कर रहा था, मगर मैं इत्मीनान से अपनी जगह बैठा हुआ था। आखिर उसने बेसब्री से कहा, कुछ करो मिस्टर एलन, वो निकला जा रहा है। मैंने बेपरवाही से कहा, उसे जाने दो। हमने कुछ करने की कोशिश की तो वो मशकूक हो जाएगा और फिर उससे निमटना आसान नहीं रहेगा। पीटर बोला, वो तन्हा है, हम उसका ताक़ुब करके उसे किसी वीराने में भी घेर सकते हैं। मैंने कहा, यह बात तय हो चुकी है कि उसके खिलाफ जो भी कदम उठाऊंगा मैं ही उठाऊंगा। उसके बावजूद तुम बार बार बहक जाते हो। पीटर बोला, मैं माजरत चाहता हूँ मिस्टर एलन, अब तुम मेरे मुंह से कुछ नहीं सुनोगे। मैंने अपने लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा, तुम अपनी राय का इजहार कर सकते हो पीटर, मगर उस पर इसरार मत किया करो। यकीन करो, जब भी तुम कोई माकूल मशवरा पेश करोगे मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। पीटर ने इस बात में सर हिलाया, बोला, ठीक है मिस्टर एलन। मैंने कहा, इसके अलावा तुम ये भी भूल रहे हो कि उसकी निगरानी हो रही है। वो जहां भी जाएगा हमें उसका इल्म हो जाएगा। पीटर ने कहा, सवाल यह है कि इस वक्त हमें यहाँ आने से क्या फायदा हुआ। मैंने कहा, हमें ये मालूम हो गया कि ओलिव हार्वर्ड अमेरिका से बाहर निकलने के लिए पर तोल रहा है और गालिबन वो यहाँ से निकलकर शाम का रुख करेगा। पीटर ने चौंक कर कहा, तुमने ये अंदाजा किस तरह लगाया। मैंने कहा, उन दोनों की गुफ्तगू के चंद अल्फाज कान में पड़ गए थे जिनसे मैंने ये नतीजा अखज़ किया। वो बोला, कमाल है, मैं भी तुम्हारे साथ उस टेबल पर मौजूद था मगर मैं एक लफ्ज़ भी न सुन सका। मैंने कहा, मैं बातें तुमसे कर रहा था मगर मेरी सारी तवज्जो उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर मरकूज थी। पीटर ने बेचैनी से पहलू बदला, बोला, ओह, तो तुमने उनकी क्या क्या बातें सुनी। मैंने कहा, कोई एक जुमला भी मुकम्मल तौर पर नहीं सुन सका, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो क्या बातें कर रहे थे। पीटर ने बेयकीनी से मुझे देखा, बोला, एक जुमला भी नहीं सुना और इतने बड़े बड़े नताइज भी अखज़ कर लिए। मैंने कहा, क्या ये नताइज अखज़ करने के लिए इतना सुन लेना काफ़ी नहीं है कि उसकी मेज़ पर मौजूद शख्स शामी काउंसलेट जनरल का मुलाजिम है। पीटर चौंक पड़ा, ओह, वो कोई गैर मुल्की तो था मगर मैं उसकी कौमियत का अंदाज़ा नहीं कर सका। मैंने कहा, उसका अरब होना तो साफ जाहिर था मगर उसके मज़हब और कौमियत का पता मुझे भी उनकी गुफ्तगू से ही चला। पीटर बोला, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हमें ये मालूमात हासिल हो गई हैं, मगर हम इन मालूमात से क्या फ़ायदा उठा सकेंगे। मैंने कहा, ये इतनी आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं है। आओ वापस चलते हैं। बट से बात करने के बाद मुमकिन है सूरत हाल और वाज़ेह हो जाए। हम वहाँ से वापस आ गए। पीटर ने खामोशी इख्तियार कर ली और वो खासा मायूस नजर आ रहा था, मगर मैंने भी उसके बाद उससे कोई बात न की। मालूम नहीं उसने मुझसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। बट अपने कमरे में ही था और फ़ोन पर किसी से गुफ्तगू कर रहा था। हम बैठ गए। चंद मिनट के बाद गुफ्तगू ख़त्म करके वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, इंपीरियल होटल से ओलिव हार्वर्ड सीधा उसी इमारत में वापस गया है। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया, कहा, ठीक है, उसे ताक़ुब का शुबा तो नहीं हुआ। बट बोला, यकीन से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका ताक़ुब करने वाले का ख्याल है कि वो अपने ताक़ुब से बाखबर हो गया है। मैंने तेज़ी से पूछा, क्या उसने ऐसी कोई हरकत की थी जिसकी बिना पर यह ख्याल पैदा हुआ। बट ने कहा, नहीं चीफ, ओलिव हार्वर्ड ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। उसके बावजूद भी ख्याल यही है कि उसे अपनी निगरानी किए जाने का पता चल गया है। मैंने एक तवील सांस ली, कहा, ठीक है, बट हम मजीद रिस्क नहीं ले सकते। अब उस इमारत से बरामद होने वाले किसी भी शख्स का ताक़ुब न किया जाए और इमारत की निगरानी करने वालों को भी इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत कर दो। बट ने कहा, वो तो पहले ही बहुत मोहतात हैं चीफ, इस तरफ से तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, उन्हें कभी मालूम नहीं हो सकेगा कि इमारत की निगरानी हो रही है। पीटर ने कहा, माफ करना मिस्टर बर्ड, तुम लोगों के काम करने का अंदाज मेरी समझ में नहीं आ सका। बर्ड ने मुतहय्यराना अंदाज में पहले पीटर को देखा, फिर मुझे देखा। उसने पलकें झपकाते हुए कहा, मैं इस बात का मकसद नहीं समझ सका। मैंने कहा, पहले ये सुन लो कि होटल में क्या बीती। पीटर का ख्याल था कि ओलिव हार्वर्ड को रास्ते में ही घेर लेना चाहिए था, जबकि मैं इस बात के खिलाफ था। बर्ड ने सर हिलाकर कहा, ठीक है चीफ, मैं समझ गया। फिर वो पीटर से मुखातिब हुआ, बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ, मगर तुम सिर्फ इस नुक्ते पर गौर करो कि हमारा तरीक़ेकार तुम्हारे लिए नाकाबिल फ़हम होना ही चाहिए, इसलिए कि ये तुम्हारे तरीक़ेकार से बहुत मुख्तलिफ है, और अगर तुम्हारा तरीक़ेकार दुरुस्त होता तो तुम नाकाम क्यों रहते। बर्ड के इस्तिदलाल ने मुझे हैरान कर दिया, हालांकि ये बिल्कुल सामने की बात थी। मैंने बड़े गौर से पीटर के चेहरे की तरफ देखा, जिसके तासुरात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे थे। बिलाखिर उसने एक तवील सांस लेकर कहा, तुम्हारी बात से मुत्तफिक होने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। यकीनन मेरे तरीक़ाकार की कोई खामी ही मेरी नाकामियों का सबब रही होगी।
बट ने कहा तो ये बात हो गई कि अब तुम हमारे तरीक़ाकार के खिलाफ कोई बात नहीं करोगे। पीटर ने कहा हरगिज़ नहीं, इसलिए कि मैं हर हाल में ओलिव हार्वर्ड का खात्मा चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों के काम करने का तरीका समझने की कोशिश तो कर सकता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं, जो बात भी तुम्हारी उलझन का बायस बने उसके बारे में तुम सवाल जरूर कर सकते हो, मगर ये नहीं होना चाहिए कि तुम हमारे लिए ही उलझन का बायस बन जाओ। पीटर ने कहा अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये बताओ कि क्या उसे वीराने में नहीं घेरा जा सकता। मैंने कहा एक कोशिश जरूर की जा सकती थी, मगर ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि उस कोशिश का नतीजा क्या निकलता। फर्ज करो हम कामयाब हो जाते, तब भी पुलिस हमारी तरफ जरूर मुतवज्जे होती। तुम तो न्यूयॉर्क पुलिस से हमसे ज्यादा वाकिफ होगे। ये लोग 1 मिनट के अंदर अंदर मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। पीटर बोला मैं समझ गया मिस्टर एलन, उस पर हमला करने की सूरत में ये इम्कान भी होता कि वो बच जाए, और अगर ऐसा हो जाता तो हम बहरहाल पुलिस के चक्कर में फंस जाते। मैंने कहा मुझे खुशी है कि बात तुम्हारी समझ में आ गई। हालांकि मैंने उसे असल बात बताई ही नहीं थी। न्यूयॉर्क की पुलिस से मुझे कोई खौफ नहीं था, मुझे तो तहजीब की फिक्र थी, इसलिए मैं उस इमारत में घुसने की फिक्र में था जिसे ओलिव हार्वर्ड ने अपना अड्डा बना रखा था। और अब तो मैं इस फिक्र में था कि ओलिव हार्वर्ड ने शामी काउंसलेट के किसी मुलाजिम से मुलाकात क्यों की। दफतन फोन की घंटी बजी और मैं चौंक पड़ा। बर्ड ने रिसीवर उठा लिया, फिर उसने रिसीवर पीटर की तरफ बढ़ा दिया। बोला तुम्हारी कॉल है मिस्टर पीटर। पीटर ने बर्ड से रिसीवर लिया और चंद लम्हे दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनता रहा, फिर माउथ पीस पर हाथ रखकर मुझसे मुखातिब हुआ। बोला मेरे उस मुलाजिम का फोन आया है जो मेरे मेकअप में नाइट क्लब में मेरी जगह काम कर रहा है। कुछ देर कबल उसके पास एक लड़की आई थी जो उससे उस जोड़े के बारे में पूछ रही थी जिसे मैंने पनाह दी है और जिससे मैं कोई काम लेना चाहता हूँ। मैंने बौखला कर कहा क्या कह रहे हो, किसी लड़की को इस बात का इल्म कैसे हो सकता है। पीटर ने कहा मेरे आदमी ने लाइल्मी जाहिर की तो उसने बड़े यकीन से कहा कि तुम्हें मुत्तला कर दिया जाए, मगर तुम्हारे साथ जो लड़की है उसे ये मालूम न होने पाए कि सिल्विया नामी कोई लड़की तुम्हें पूछ रही थी। मेरी खोपड़ी घूम गई। सिल्विया मुझे क्यों तलाश कर रही है? मैंने कहा जरा उससे सिल्विया का हुलिया तो पूछो। पीटर ने अपने मुलाजिम से पूछकर मुझे उस लड़की का हुलिया बताया जो 100% सिल्विया का ही हो सकता था। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा ठीक है, उससे कहो कि सिल्विया को क्लब में ही रोके, मैं कुछ देर में उससे राब्ता करूंगा। पीटर ने रिसीवर में मेरी हिदायत दोहराकर फोन बंद कर दिया। बर्ड ने पूछा चीफ ये सिल्विया कौन है? मैंने कहा हारूत राबील की एक मुलाजिम है, मगर वो तो उस इमारत में थी, क्लब में कैसे पहुंच गई? बर्ड ने खुद कलामी कैसे अंदाज में कहा तब फिर वो सिल्विया ही रही होगी। मैं उसे घूरने लगा। मैंने पूछा कौन सिल्विया रही होगी? बर्ड ने कहा जिस वक्त तुम और मिस्टर पीटर होटल इंपीरियल गए थे मुझे इत्तला मिली थी कि उस इमारत से एक लड़की निकली है। मैंने उसे गैर अहम समझकर उसका ताक़ुब नहीं करवाया था, शायद वही सिल्विया होगी। मैं बड़बड़ाया मालूम तो यही होता है, लेकिन तुम्हें चाहिए था कि मुझे बताते। बर्ड ने कहा मुझे ख्याल नहीं रहा चीफ। खैर अब ये बताओ कि तुम उससे राब्ता किस तरह करोगे? मैंने कहा उससे मिलने जाऊंगा, मेरे लिए किराए की एक कार का बंदोबस्त करो। बर्ड ने कहा किराए की कार के लिए तो सिर्फ एक फोन करना होगा चीफ, मगर ये भी तो सोचो कि उससे इस तरह मिलना खतरनाक भी साबित हो सकता है। मैंने कहा खतरनाक कैसे साबित हो सकता है? वो लड़की है या तोप का कोई गोला जो मेरे मिलने से फट जाएगा? बर्ड ने कहा मुकाबले पर ओलिव हार्वर्ड है चीफ, ये किसी किस्म का जाल भी हो सकता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा हाँ हो सकता है, मगर मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। बर्ड ने कहा तुम इतने बेचैन हो रहे हो तो जरूर कोई खास बात होगी। खैर कोई बात नहीं, बर्ड का काम तो बताना है, नहीं मानोगे तो खुद ही भुगतोगे। मैंने कहा मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है बर्ड, तुम कार के लिए फोन कर रहे हो या मैं खुद करूं? बर्ड ने रिसीवर उठाकर भिन्नाए हुए अंदाज में कहा कर रहा हूं। बर्ड की बात तो बकवास ही लगेगी, और जहां लड़की का नाम आया कैसे बेचैन हो गए। पीटर हैरत से ये गुफ्तगू सुन रहा था, उससे रहा न गया। मुझसे कहने लगा क्या तुम लड़कियों के रसिया हो मिस्टर एलन? लेकिन न्यूयॉर्क में लड़कियों की कोई कमी तो नहीं है, तुम जवान भी हो और हैंडसम भी। किसी लड़की के लिए तुम्हारी बेताबी समझ में नहीं आती, लड़कियों को तो खुद तुम पर परवानावार गिरना चाहिए। मैंने कहा तुम भी किस गधे की बातों में आ गए पीटर, वो कोई आम लड़की नहीं है, हारूत राबील के गिरोह से ताल्लुक रखती है और मुझे तवक्को है कि उससे कारआमद मालूमात हासिल हो सकेंगी। पीटर बोला ये बात है तो मिस्टर बर्ड तुम्हारे बारे में क्यों इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं? ये तो तुम्हारे साथी हैं, तुम्हें अच्छी तरह समझते होंगे। मैंने सर हिलाया, कहा बहुत अच्छी तरह समझते हैं और मैं भी इन्हें बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मसला ये है कि तुम इन्हें बिल्कुल नहीं जानते। ये तमाम दुनिया की लड़कियों पर अपना हक समझते हैं और उन्हें अपनी जागीर तसव्वुर करते हैं। तुमने गौर नहीं किया इनके लहजे में रकाबत की कैसी आग थी? पीटर ने कहा हाँ ये तो मैंने महसूस किया था, मगर ऐसा क्यों है? बर्ड ने फोन बंद करते हुए कहा यह सिर्फ मुझे बदनाम करने की साजिश है, वरना लड़कियां तो बर्ड के आगे पीछे घूमती हैं। पीटर ने कहा मुमकिन है ऐसा हो,
मगर मैंने तो ये पूछा था कि तुम्हारे आसाब पर लड़कियां इस बुरी तरह क्यों सवार रहती हैं। बड जारहाना लहजे में बोला, किसके आसाब पर सवार नहीं होती, चीफ को ही देख लो। जहां ये इत्तला मिली कि किसी लड़की ने इन्हें पूछा था, बस दौड़ पड़े। पीटर ने बेबसी से शाने उचकाए, बोला, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। बड ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, जब जी चाहे बहस करके देख लो। मैंने हाथ उठाकर कहा, बस बहुत हो गई, फजूल बातें फिर किसी वक्त के लिए उठा रखो, ये काम का वक्त है, मैं जा रहा हूँ। बड ने कहा, क्या तुम तन्हा जाओगे चीफ? मैंने कहा, हाँ मैं तन्हा ही जाऊंगा, ये कोई साजिश भी हो सकती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई और भी फंसे। मैंने किराए की कार हासिल की और नाइट क्लब की तरफ रवाना हो गया। नाइट क्लब पहुंचकर सिल्विया को तलाश करने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। वो हॉल की एक मेज पर मौजूद थी। हॉल में बहुत कम मेजें आबाद नजर आ रही थीं, लेकिन किसी और मेज का रुख करने की बजाय मैं सीधा उसकी मेज की तरफ बढ़ गया। मैंने कहा, अगर मैं इस मेज पर बैठ जाऊं तो मुझे यकीन है आप बुरा नहीं मानेंगी, और इत्मीनान से कुर्सी खिसका कर उसके मुकाबिल बैठ गया। मैं उससे बदली हुई आवाज में गुफ्तगू कर रहा था। मेरी इस जसारत पर सिल्विया की पेशानी शिकन आलूद हो गई। उसने खुरदरे लहजे में कहा, मेरा ख्याल है यहाँ बहुत सी मेजें खाली हैं। मैंने कहा, आपका ख्याल दुरुस्त है मिस। सिल्विया ने नागवारी से कहा, अगर तुम्हारे लिए इस मेज पर बैठना इतना ही जरूरी है तो मैं किसी और मेज पर चली जाती हूँ। मैंने कहा, ओहो आप तो नाराज हो गई, ऐसा गजब मत कीजिए, कितनी दूर से महज आपसे मिलने की खातिर आया हूँ और आप इस कदर बेरुखी बरत रही हैं। सिल्विया ने मुझे घूरते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैंने कहा, आपकी ख्वाहिश के एहतराम में मुझे ये जहमत करनी पड़ी। क्या आप मुझे तलाश नहीं कर रही थी? सिल्विया मुझे उलझी हुई निगाहों से घूरने लगी। बोली, तुम? मैंने कहा, हाँ मैं अली यार खान हूँ और मेकअप में हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान सकोगी। सिल्विया ने बेएतबारी से कहा, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम वाकई अली यार खान हो? मैंने अपनी असल आवाज में कहा, इसके लिए मुझे वो सब कुछ दोहराना पड़ेगा जो मेरी तीमारदारी के दौरान हुआ। कहाँ से शुरू करूं? सिल्विया कपकपाती हुई आवाज में बोली, ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली है। मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा, जाहिर का क्या हाल है? उसे होश आया? सिल्विया के चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। बोली, हम तो पहले ही उसकी जिंदगी की तरफ से मायूस थे, कोशिशें कर रहे थे, अफसोस हमारी सारी कोशिशें रायगां साबित हुई। मुझे दिली सदमा हुआ, मगर मैंने उससे अपने तासुरात छुपा लिए। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था सिल्विया। वो बोली, मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मुझे कोई खतरा लाहक नहीं है। मैंने कहा, तुम यहाँ पहुंची कैसे? मेरा मतलब है तुम्हें ये कैसे इल्म हुआ कि मेरा इस जगह से कोई ताल्लुक है? सिल्विया ने एक तवील सांस लिया। बोली, बहुत मुश्किल सवाल है, मैं आसानी से इसका जवाब नहीं दे सकूंगी। मैंने कहा, इसमें कौन सी उलझन की बात है? जो कुछ भी है साफ साफ बयान करो। बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अंकल राबील मुझे अपने खास लोगों में शुमार करते हैं। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन इससे तुम्हारे यहाँ पहुँचने का क्या ताल्लुक? बोली, बहुत गहरा ताल्लुक है। ये बात अंकल राबील और ऑलिव हावर्ड के इल्म में है, और उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से ही मुझे पता चला कि तुम्हारा सुराग यहाँ से मिल सकता है। मैंने चौंकने की अदाकारी की। कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, उनके इल्म में ये बात कैसे आ सकती है? वो बोली, तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि ये बात न सिर्फ उनके इल्म में है, बल्कि मुझे भी उन्हीं से मालूम हुआ है। मैं बड़बड़ाया, कहा, हैरत अंगेज, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि उनकी मालूमात का जरिया क्या है? सिल्विया ने मुस्कुराकर कहा, लकी हावर्ड। मैं गोया और इस इंकिशाफ पर उछल ही पड़ा। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? उस इमारत से मेरा फरार उसका मरहून मिन्नत है, वो भला ऐसी हरकत क्यों करेगी? सिल्विया ने कहा, लकी हावर्ड ने खुद कुछ नहीं किया, बल्कि वो सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के तहत हुआ था। स्कीम ऑलिव हावर्ड की थी और उस पर उसकी बेटी ने अमल किया।